Okay, friends, today we are going to see the chapter number 3 in your books of business accountancy 1, and the chapter name is account current. What is account current and why we are preparing that books of accounts? See the objective first. What is account current? For that, see, current account, you know, when we are investing the fund into the bank, and if we are doing a business, bank open our current account. But here the difference is there. Here the account current we have to prepare for the different purpose. Why we are preparing the accounting current? That is given on page number 132. See, the debtor can ascertain whether the amount recorded in the books of the creditor is correct or not. See, when you are doing a purchase and sales activity, at that time two different persons are preparing the books of account. One is the purchaser and second one is a seller. If the books of account is not matched with the two parties, there is a dispute. मैंने 5,000 का माल बेचा था और आपने 6,000 का बिल बेच दिया, तो पहले से उसको चेक करना. Every now and then, approximately at the end of the every month or every quarter, we have to tally with our creditors or debtors our books of account. Okay, see, this is my account, show me your account. We will tally all the things. Okay? तो सामने वाले से कितना पैसा लेना है या सामने वाले को कितना पैसा देना है, दोनों हमको पता चलता है. હું એવું કહું કે મારે તારી પાસેથી 15,000 લેવાના છે, તમે કહો ના 15,000 નહીં, મારે તો 12,000 જ આપવાના છે. આપણે એકાઉન્ટ ટેલી કરીએ તો ડિસ્પ્યુટ આવે. ક્લિયર? Because in 3 months time period we have done so many times purchase activity, so many times we have made the payment to the persons, or suppose we have done the purchase, we have returned the goods also. So many things happen. So every now and then, if needed, every month, every quarter, or as per the relation with the debtors and creditors, we have to tally our books of accounts with them. Second number is given. Also, to sending it to creditors indirectly indicates that the debtor should pay the outstanding amount soon. देखो, बैंक से आपको हमेशा लोन का मैसेज आता है कि आपको इतना लोन हमें पे करना बाकी है और इस महीने आपका इतना इंस्टॉलमेंट कटेगा. बिफोर ड्यू डेट आपको मैसेज आता है. जैसे ही ड्यू डेट पैसा काटता है तुरंत इंटीमेशन आ जाता है कि योर मनी इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट. तो बैंक आपको हमेशा क्या करता है, आपसे पैसा लेना है तो आपको इंटीमेट करता है. आप भी अपने क्रेडिटर या डेटर्स को इंटीमेट करते हैं कि तारे आटला पैसा છે આપવાના બાકી, આ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે આટલા બાકી છે, ઇન્ટરેસ્ટ વગર. બજાજ ફાઇનાન્સમાંથી લોન લઈએ, જેવા હપ્તા કપાવવાના થાય એના 2 દિવસ પહેલા મેસેજ આવે તો હપ્તો કપાય એટલે પણ મેસેજ. થર્ડ પોઈન્ટ, ધ ડેટર गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच इंटरेस्ट हैज टू बी पेड. आपने बैंक से लोन लिया हुआ, आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है वो भी आपको पता चलना चाहिए. ओके, तो वो इंटीमेशन भी आपके पास आ जाएगा तुरंत. नेक्स्ट वन इज ओनली 3 पॉइंट्स आर देयर. समटाइम्स एमसीक्यू भी आपको पूछ ही लेते हैं, लेकिन आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ तो आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे मैं बैठा हूँ तो मैं एमसीक्यू नहीं पूछता. भाई हम अकाउंट करंट पढ़े थे ना, आप लोग हाँ सर आया था चैप्टर एफ पर. वाई वी आर प्रिपेयरिंग? क्योंकि मुझे आपको जॉब पे अपॉइंट करना है एंड यू आर माई कलेक्टिंग एजेंट. आपको लोन देना है और उसका कलेक्शन करना है, तो आपको ये चैप्टर आना चाहिए. इट मीन्स यू हैव powerful to calculate the interest on the basis of days, on the basis of month. It is on time period. भाई 15 दिन का कितना इंटरेस्ट होता है, 5 दिन का कितना इंटरेस्ट होता है, वो आपको आना चाहिए. कैलकुलेट. जिसको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, जिसको फाइनेंस सेक्टर में जाना है, जिसको फ्यूचर में बजाज कंपनी या तो फिर फ्यूचर में अभी रिलायंस भी आ रहा है धीरे धीरे मार्केट में, ऐसे फील्ड में जाना है तो आपको ये चैप्टर 100% आना चाहिए. नीचे 3-4 पॉइंट और दिए हुए. फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी क्लियर दैट और कंक्लूड दैट फर्स्ट अकाउंट करंट इज सेंड टू द क्रेडिटर्स टू हिज डेटर्स. अंडरलाइन करो, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है. कौन प्रिपेयर करता है और किसको भेजता है? अकाउंट करंट इज सेंड बाय द क्रेडिटर्स टू द डेटर. जिसको पैसा लेना है वो किसको भेजेगा? जिसको पैसा
देना है उसको या जिससे पैसा लेना है उसको। मुझे अगर आपसे पैसा लेना है तो मैं बना के हर महीने आपको भेज दूँगा। देखो बजाज आपको इंटीमेट करता है, आप बजाज को इंटीमेट नहीं करते, बजाज फाइनेंस को आप इंटीमेट नहीं करते, वो आपको इन्फॉर्मेशन भेजता रहता है कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट आया, इतना बाकी है, इतना इंटरेस्ट हो गया है, पेनल्टी इंटरेस्ट इतना लगा है, वॉट एवर इट मे। दूसरा पॉइंट, ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर रिकॉर्डेड इन इट। ये समझो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, मैंने तो किया है ना बजाज कंपनी ने, तो आपने कब पैसा दिया, लोन कब लिया, बराबर टाइम के साथ आ जाएगा उसके। और आप बोलो सर मैंने तो पैसा दे दिया, भाई तू रिसिप्ट दे या मेरा अकाउंट एक्सेप्ट कर ले, पानो गल्लो है ने भी हो તમે को भाई मारे ચોપડામાં લખ્યું ને સાચું ઓકે તારી પાસે પ્રૂફ હોય તો આ તમે को ऑनलाइन पेमेंट કર્યા હતા તારું સ્કેન કર્યું ભાઈ મારા એકાઉન્ટમાં દેખાય બીજા કોઈને પેમેન્ટ મને ખબર। नेक्स्ट वन इज इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड फॉर द लास्ट पेमेंट। अभी आप लास्ट पेमेंट करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल पूरे साल में आपने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, पूरे 3 महीने आपने 3 बार परचेज किया या सेल्स किया, समझो ना, सेल्स 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 सेल्स, यहाँ पर कैश रिसीव, बैंक से पैसा, कैश रिसीव, सेल्स रिटर्न, ये सारे ट्रांजेक्शन बराबर। ये 10,000 रुपये का आपने पहले सेल्स किया, फिर 5,000 का सेल्स किया, फिर 2,000 का सेल्स किया, यहाँ पर उसने आपको पैसे दिए 8,000 रुपये, फिर आपने बैंक से पेमेंट किया 5,000 रुपये, फिर 1,000 रुपये पेमेंट किया, 500 रुपये का कुछ रिटर्न किया। और अब ये सारे ट्रांजेक्शन तो ये टोटल हो जाता है 17,000। ये टोटल होता है 8 पर 13 14 500, यानी अभी भी 2,500 बैलेंस है। 2,500 अभी भी देना बाकी होता है, क्लियर। लेकिन ये ट्रांजेक्शन डिफरेंट डेट पे हुए होंगे। ये सारे ट्रांजेक्शन डिफरेंट डेट से हुए। अब मेरा तो कंडीशन क्या है, जितना लेट पेमेंट उतना मैं पेनल्टी इंटरेस्ट होगा आपसे, या जितने दिन लेट आपने पैसा दिया, हमारी कंडीशन थी कि हर 15 दिन में पैसा देना, या मैंने सेल्स किया उसके 15 डेज में आपको पेमेंट कर देंगे, या तो 30 डेज में पेमेंट कर देंगे, 1 महीने के अंदर, और आप पेमेंट मुझे हैपेजाइजली करते हो, कोई डेट फिक्स नहीं, जब मर्जी हो पैसा दिया। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट डेट के हिसाब से, और उतना इंटरेस्ट मैं आपसे लूँगा, वो कैलकुलेशन इस चैप्टर में सीख। तो मैं साल खत्म होते ही बोलेंगे लो 2500 मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे फाइनल हो नहीं, मुझे 2500 नहीं देना, मुझे 2572 यानी 2572 यू हैव टू मेक 72 रुपीज द इंटरेस्ट यू हैव टू मेक। 72 रुपीज आपको किसके देने, मुझे इंटरेस्ट के देने। बैंक क्या करता है, जितना लोन लेट पेमेंट करोगे उतना आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता जाएगा। समझो आज आप बैंक में जाते हो, आपके 2 लाख रुपये बाकी है विथ इंटरेस्ट, आज का दिन, कल जाके बोलोगे लो ये 2 लाख रुपये, आज 2,120,000 हो गए, 120 ज़्यादा देंगे, 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, और आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा। समझो आप 1 लाख रुपये दे के आते हो, दूसरे दिन से 1 लाख का इंटरेस्ट चालू रहेगा। जब 1 लाख लेने जाओगे दूसरे 4 दिन के बाद, तो 4 दिन का इंटरेस्ट चढ़ा के देगा। तो वो सारा चीज़ ये चैप्टर करना सीखना। 3 मेथड है, लेकिन ज़्यादातर एक ही मेथड चलता है, सारे एक्सरसाइज के सब एक ही मेथड है, प्रोडक्ट में वो अब आज देखिए। और सारे सम में बात में जैसे सुपॉल भेजा था ना 13-14 सम सॉल्व करके एक PDF आया था एवरेज ड्यू डेट का, सेम में इसके भी आपको पूरा PDF मिलेगा। ऑलमोस्ट इट इज क्लियर और रिटर्न आई विल सेंड विद इन 4-5 days। ओके, चैप्टर शुरू करते हैं। ये बेसिक था चैप्टर कि क्यों ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। जिसको फ्यूचर में फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस, कोटक फाइनेंस या कोई भी बैंकिंग कंपनी के अंदर काम करना है,
उसको ये चैप्टर 100% आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के साथ डेली झगड़ा होगा। जैसे आज मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने बोला कितना पेमेंट बाकी है, मुझे कंपनी से पूछ के बताओ, तो आपको कंपनी को फ़ोन करना पड़ेगा। कंपनी बोलेगी कि बोल दो 6,280 रुपये बाकी, बराबर। अब दूसरे दिन वो आदमी आपके पास आता है, लो ये 6,280 भर देगा, तो आप भरने गए, वहाँ क्या बोलेगा, एक दिन ऊपर हो गया, लाओ 7 रुपये एक्स्ट्रा भरने। उसको बोलना क्या है कि 6,280 आज के दिन में बाकी है, तू चाहे तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे, तो आज मैटर खत्म। अगर कल देना है तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा वो देना। कंपनी तभी कमाती है डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट, और वो चैप्टर का सब आज में देखते हैं। सो ओपन योर बुक। मेथड मैंने बोला डेज कैलकुलेशन थोड़ा सिखा दूँ, याद करवा दूँ। ऑलरेडी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसके अंदर मैं आपको डेज कैलकुलेशन का एक सिंपल तरीका सिखा देता हूँ। See, in which month how much days are there, that is important. जनवरी से स्टार्ट करके दिसंबर तक, बराबर। उस दिन मैंने समझाया था, जो लोग लाइव नहीं थे आज देख लो, ये जो आपका हाथ है ना, उसी से महीने गिने जाते हैं। ये जितने भी है वो 31 है, और जो नीचे गैप है वो साले 30 है, एक्सेप्ट फेब्रुआरी, बराबर। जनवरी में होते हैं 31, ये होते हैं 28 या 29, लीप ईयर बोलते हैं इसको। ये 31, अगेन ये 30, 31, 30, और जुलाई अगस्त में कंटिन्यूअस होते हैं 31। तो ये 1, 2, 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त फिर से स्टार्ट होता है, बराबर, माउंटेन से, वो 31, फिर 30, अक्टूबर में 31, नवंबर 30 और दिसंबर 30। ये 365 डेज होता है, या 366 डेज। अगर सम आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें फरवरी महीना आता है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि 29 डेज या 28 डेज है, वो पहले डिसाइड करो। वो डिसाइड होता है लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स द ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4 इन इंटीजर विदाउट इंटीजर, यानी आंसर आना चाहिए 5, 8 लाइक दैट। अगर 5.2 आता है तो फिर वो लीप ईयर नहीं, जैसे 1997, 2023 ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2024 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो वो डेसिमल में आंसर नहीं आता, फुल फिगर आ जाएगा, तो वो ये लीप ईयर है। अब कब आएगा 2028, उससे पहले 2020 में था, तो 4 का टेबल याद रखो तो भी हो जाएगा, बराबर। 4, 8, 12, 16, 20, 24 लाइक दैट। पूरा एक सही का होता है ना 100 साल, उसमें 25 साल ऐसे होते हैं जिसमें लीप ईयर, 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 25 साल होते हैं लीप ईयर, बाकी 75 लीप ईयर नहीं। क्लियर? तो डेज याद कर लेना कौन से महीने में कितने होते हैं, और नहीं रहता तो मैंने मेथड समझा दिया आपको, जनवरी फरवरी वाला, उससे कर लेना। दूसरी चीज, अगर आपको बिल रिसीवेबल या बिल्स पेएबल ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो उसमें 3 दिन ग्रेस के काउंट होते हैं, और 15 अगस्त, 26 जनवरी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर हो, एक दिन पहले पेमेंट करता है, बाद में नहीं। हम क्या सोचते हैं कि 15 तारीख को छुट्टी है तो पैसा हम 16 तारीख को देंगे, वो नहीं होता है। एवरेज ड्यू डेट में मैंने समझाया था ये पॉइंट, एक दिन पहले पेमेंट करते हैं, बिफोर। हम सेंटेंस ही यही बोलते हैं, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, नॉट आफ्टर ड्यू डेट। यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट, नॉट आफ्टर। यानी 15 का पैसा आप 14 को दे सकते हो, लेकिन 16 को नहीं। आप एग्जाम फॉर्म भी भरते हो ना,
अभी आएगा आपका एग्जाम फॉर्म भी ऑनलाइन भरना, तब बोलेंगे यू हैव टू पे द फीस ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अदरवाइज यू हैव टू पे द लेट फी। सर उस दिन तो संडे था, छुट्टी थी, दूसरे दिन भरे तो संडे का काट के देना चाहिए, वो नहीं होता, लेट फी के साथ ही जाएगा, वो भी याद रखना। अब सम पे आते हैं। See the illustration number 2. क्लियर? इलस्ट्रेशन 2 देखो, इलस्ट्रेशन 1 एकदम सिंपल है, इसलिए इसके ऊपर मैंने क्या 2 देखते हैं। सी द क्वेश्चन, और ये मैंने आपको बोला कि जो प्रोडक्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे सम भी है आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अकाउंट करंट ऑफ प्रवीण to be sent by Vasant as on 31st March 2003 as per product method. See the particulars. आपको डेट दिया हुआ है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। पर्टिकुलर्स इज गिवन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम प्रवीण, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है, लिख लो वहाँ पर पेंसिल हो, ओपनिंग बैलेंस है। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम प्रवीण, दैट मीन्स इट इज अ ओपनिंग बैलेंस। अगर किसी से पैसा मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। ओके, 4000 गुड्स सोल्ड टू प्रवीण ऑन 1 मंथ क्रेडिट, जब बेचा उसी दिन डिसाइड किया कि 1 महीने बाद पैसा देना है, तो सेल डेट भी दिया हुआ है और पैसा कब मिलेगा, 1 महीने बाद, यानी उसका ड्यू डेट भी दिया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट इज कैश पेड बाय प्रवीण, प्रवीण ने कितना कैश पेमेंट किया। प्रवीण एक्सेप्ट बिल फॉर 1 मंथ, यानी प्रवीण ने 1200 रुपये का बिल भी एक्सेप्ट किया हुआ है 20 फरवरी को। गुड्स परचेज फ्रॉम प्रवीण, अगेन परचेज किया, वो भी 1 महीने के क्रेडिट से 1000 रुपये का। एंड द लास्ट ऑन 15 मार्च 2023 कैश पेड बाय प्रवीण। और एक सेंटेंस लास्ट में दिया, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सेम, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, आपको टाइम दिया है नहीं, तो वो टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बराबर। और साथ में आपको अमाउंट भी नहीं दिया है, कौन सी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट की फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू PR/100, लेकिन न तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, न नंबर ऑफ डेज या ईयर या मंथ पता है, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। तो 2 चीज हमें फाइंड करना है और फिर जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। सारे सम प्रोडक्ट मेथड से दिए हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वो मेथड और उसके लिए जो लाइन जरूरी है, दोनों एक साथ ड्रॉ करेंगे। आप जो पेज है ना उसको ऐसे करते हो, लैंडस्केप में कर दो। अगर लैंडस्केप कोई नहीं करना चाहता है तो डेबिट क्रेडिट, एक पूरा डेबिट साइड, एक पूरा क्रेडिट साइड, एक पेज पे आराम से 2 सम हो जाएंगे। जो मेथड आपको ठीक लगे, एग्जाम में भी आप दोनों कर सकते हैं। अगर आपको लैंडस्केप कंफर्टेबल है देन यू कैन डू द लैंडस्केप, या तो फिर हॉरिजॉन्टल। चलिए
सम स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो पहला डेट है रेगुलर डेट का लाइन, सबसे पहले डेट, देन ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स। इसीलिए मैंने बेटा लैंडस्केप बोला, ऐसे करो तो आ जाएगा, ऐसे बनाओ तो भी आ जाएगा, और नहीं तो दो पेज कर दो, एक पूरा डेबिट साइड बना दो, एक क्रेडिट साइड बना दो, अगर सीधा ही रखना है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक पेज पर बनाइए। हाँ, एक पेज पर बनाइए। एक साइड पर 6 कॉलम आते हैं, बराबर। 6 कॉलम वो एक साइड पर है, उसमें सबसे पहला डेट, देन ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, डेज काउंट करना है, प्रोडक्ट, उसके बाद फिर से डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट। चलो ड्रॉ करो फटाफट। एक पेज पीछे आवाज થાય છે સંભળાય નહીં એટલે મેં બંધ કર્યું। પંખા નીચે જતો રહ્યો, हाँ પાસે જતા રહો, પંખા નીચે મત हो गया। આ બાજુ चलो स्टार्ट करो। हाँ तो फटाफट लाइन ड्रॉ करो, बातें नहीं करनी थी। ऐसे सारी चीजें चिल्ला के बता नहीं सकते, फिर भी मैंने बता दिया।
डन। इस सम में 5 मार्क लाना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 8, 9, 10 लाना डिफिकल्ट है। अगर डेज में गलती कर दी तो सम है। 5 मार्क कैसे लाने हैं वो पहले सिखा दो कि आप कुछ भी करो, एक भी दिन का कैलकुलेशन नहीं आता फिर भी आप 5 मार्क ले आओ। ना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ना डेज कैलकुलेट करना आता है, ना टोटल करके तो भी 5 मार्क आ जाए। कैसे? लेकिन 8, 9, 10 में सब करना पड़ेगा। चलो एक एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों ने लगभग लाइन ड्रॉ कर दी है। यप। ओके, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था? ओपनिंग बैलेंस। चलो ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पर लिखेंगे? डेबिट साइड पर। क्या लिखना है यहाँ पर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट कौन सा है उसमें? 8/8/23 जनवरी 2023। और इसमें तो डेज गिनना ही नहीं है, तो सेम डेट लिख दो 1 जनवरी 23। और ओपनिंग बैलेंस कितना है? कितना है? 4000। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। बाकी सब चीजें बाद में करेंगे, पहले ये अमाउंट वाला कॉलम खत्म करते हैं। चलो उसके बाद हमने सेल्स किया हुआ है, तो लिखो टू सेल्स अकाउंट। कौन से डेट को सेल्स किया है और कितने रुपए का सेल्स किया है? 15 जनवरी 2023। ऑन 1 month credit they have stated in the sum that sales is done on 1 month credit। तो यहाँ 1 month credit पे ड्यू डेट कौन सा आएगा? 15 फरवरी 2023। क्लियर? क्योंकि 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो वो भी लिख दो। ये सब बाद में करेंगे, डेज कैलकुलेट करना बाद में। पहले सम बना दो, फिर डेज फटाफट कैलकुलेट करके लिखना कैसे वो भी देखो। अब क्या है? नेक्स्ट वन इज कैश पेड बाय प्रवीण। कितना पेमेंट किया प्रवीण ने? 500 रुपए पेमेंट किया। कौन से दिन पेमेंट किया? 2 फरवरी 23 को पेमेंट किया बाय कैश अकाउंट। और उसमें ड्यू डेट वही रहता है। कितना पेमेंट किया? 500। डेज बाद में लिखा। डेबिट क्रेडिट तो आपको 11 12 से पता है, वही लिखना है। नेक्स्ट वन इज प्रवीण एक्सेप्ट बिल। कितने महीने का बिल एक्सेप्ट किया है? वो नहीं दिया हुआ है सर, नहीं दिया ना? 1 month दिया हुआ है। चलो 20 फरवरी से हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा 20 फरवरी 23 डियर बाय बिल्स अकाउंट। कितने का था बिल्स? 1200 रुपए। अब ड्यू डेट लिखना है। कैलकुलेट करो ड्यू डेट कौन सा आएगा। चलो मैंने ऑलरेडी एक चीज भी सिखाई थी जब चैप्टर मैंने सेकंड चलाया था, एवरेज ड्यू डेट वाला, इसीलिए मैंने पहले वो चैप्टर चलाया, एवरेज ड्यू डेट। चलो यहाँ पर दिया हुआ है क्या? 20 फरवरी 23। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो 1 महीना लिख दो। तो 20 मार्च 23। ओके, और 3 दिन ग्रेस, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड मिलता है। तो चैप्टर 12 सॉरी स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर स्टैंडर्ड 12 में आता था कि 11 में? स्टैंडर्ड 11
पार्ट 2 अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखते थे, देवी गुडी ने लेडी गुडी ना बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें आता था ना ग्रेस पीरियड, ये है। तो 23 मार्च 2023, तो ये आपका ड्यू डेट आया, लिखो 23 मार्च 2023। हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट? 23 मार्च 23। कैश में तो सेम डे हो जाएगा, लेकिन बिल से 1 महीने का। अगर चेक हो तो भी 1 महीना लिखना है, अब 20 तारीख लिखो। चेक से पैसा दिया हो ना 1 महीने बाद, पोस्ट डेटेड चेक है तो 20 तारीख ही आएगा। सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो 3 डेज ग्रेस, यानी कुछ भी पड़ा हुआ वेस्ट नहीं है। भले 11th में आपको बताया कि चैप्टर के नहीं है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज फ्रॉम, फिर से आया परचेज, पहले तो हमने उसको सेल किया था, उससे परचेज किया है ना, बराबर। कितना परचेज किया? 1000 रुपये का। कौन सी तारीख को परचेज किया है? 28 फरवरी 23 बाय परचेज अकाउंट। ओके, कितने रुपए? 1000। अब उसमें ड्यू डेट कौन सा आएगा? उसमें ड्यू डेट कौन सा आएगा? क्योंकि परचेज और सेल्स दोनों में 1 महीने का बोला, इधर भी 1 महीना है, तो डेट आएगा 28 मार्च 23। डन? 1 महीने का टाइम पीरियड। 28 फरवरी को परचेज किया, 28 मार्च को ड्यू डेट है, इसीलिए डेट के 2 कॉलम बनाए, एक रेगुलर है डेट और दूसरा ड्यू डेट वाला डेट। सारे कैलकुलेशन इसके ऊपर होंगे। अब बीच बीच में डेज कैलकुलेट करने जाए तो अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे, सो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग राइट। आफ्टर दैट लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड बाय प्रवीण, 1000 रुपये प्रवीण ने पेमेंट किया है। कौन सी तारीख को पेमेंट किया? 15 मार्च को, 15 मार्च 23। सेम ईयर 15 मार्च 23 बाय कैश अकाउंट। और डेट, अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है डियर? 1000। बराबर। डेट के हिसाब से कैश पेमेंट किया था 15 मार्च, तो हमने 15 मार्च लिख दिया। सम लगभग खत्म हो गया, ये लिखा हुआ है ना, तो आपके 4-5 मार्क तो आराम से आएगा। ये तो 11-12 का पोस्टिंग का चैप्टर है, डेटा दिया हो उसका पोस्टिंग करो। लेकिन इसके अंदर आपने 3 चीजें नहीं लिखी है। सम स्टार्ट भी कर दिया, इतना लिख भी दिया। मैंने बोला 5 मार्क आ जाएंगे, लेकिन टीचर अगर चाहे ना, पेपर चेक एग्जामिनर, तो आपके 1 मार्क काट लेगा, क्योंकि आपने ये क्या है बताओ तो मुझे, उसका हेडिंग लगाया? नहीं लगाया? डालो हेडिंग। चलो, क्या लिखना है? अकाउंट करंट ऑफ प्रवीण, अकाउंट करंट ऑफ प्रवीण। किसने उसको भेजा? बराबर, सेंड बाय, क्या नाम है पार्टी का? वसंत है, बराबर, सेंड बाय वसंत। ओके। दूसरा चीज, कौन सी मेथड से सम कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड। कौन सी मेथड? प्रोडक्ट। और तीसरा पॉइंट, डेट कौन सा है? तो ये चालू हो रहा है आपका 1 जनवरी 23 टू 31 मार्च 23। अब ये नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क काट देंगे। 11-12 में सर यही होता था, बैलेंस शीट लिख के छोड़ देते थे, पूरी लाइन कभी नहीं लिखते थे। बराबर, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो डेट हमने कभी नहीं लिखा। बराबर, नफा नुकसान खातो खाली जगह वर्ष पूरा था, जो वर्ष छोड़ देते। प्रोडक्ट मेथड,
चलिए आगे चले। अब सब में डेज कैलकुलेट करना है, तब जाके प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, वो भी समझ लो। हमारे लिए प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू डेट, ये हमारे लिए प्रोडक्ट। अमाउंट और डेज उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। अब डेज फाइंड करना है, डेज के लिए एंड डेट फाइंड करना है। एंड डेट हमारे लिए कौन सा होता है? वो मैंने लिख दिया क्वेश्चन, ये हमारे लिए एंड डेट है। यानी सारे कैलकुलेशन हम कौन से डेट को खत्म करेंगे? 31 मार्च 23 को। यानी ड्यू डेट से 31 मार्च तक के डेज गिनो। 6 ट्रांजैक्शन पे 6 डेट चाहिए। पहला ट्रांजैक्शन ये रहा, ड्यू डेट है 1 जनवरी 2023, वहां से लेके कहां तक जाना है मुझे? 31 मार्च 2023 तक। क्लियर? तो कितने दिन होंगे वो कैलकुलेट करना। तो देखो एक और बार समझाना तो। हाँ, एक और बार सी 1 2 ये एग्जाम में नहीं करना है, और करो तो उसको रफ वर्क में करो। बराबर? ये बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ ना, सब लोग बनाएंगे। 1 2 3 बाद में बना देना। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये टेबल बना। देखो कैसे बनता है ये। बराबर? ध्यान देना, ये मेरे रेगुलर बैचेस में भी मैंने सिखाया। ये हमारे लिए सिर्फ प्रोफेसर लेवल के लोगों को नहीं सिखाया। प्रोफेसर बनना है तो मैं सिखा। जनवरी के डेट कितने आएंगे कैलकुलेट करो यहाँ से। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4 5 और 6। क्लियर? चलो यहाँ जनवरी में कितने दिन आएंगे? 30 डेज, क्योंकि 31 में से एक गया। 31 डेज में से एक गया। फिर फरवरी में कितने हैं? 28 और 31। तो ये तो गलती हो गई, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है ना उस दिन को भी काउंट करना है। जनवरी में कितने आएंगे? 31 फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टू द एंड डेट, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 90 डेज, यानी तो 90। अब आप क्या करते हो? हर बार जनवरी फरवरी मार्च लिखते हो। अब दूसरा कैलकुलेट करो, 15 28 में से निकालो कितने दिन निकले? फरवरी में 28 दिन होते। अब जनवरी भूल जाओ, चलो 28 में से माइनस करो, कितने बचे? 13। हाँ 13। और ये कितने? 31 कितने हो गए? 43। बराबर? टेक्स्ट बुक में देखो कितने लिखे। अब भी मैंने सिखाया आपको, आप भूल गए 1 सेकंड में। 44। ये 14 आते हैं। अब भी मैंने सिखाया, आप 1 सेकंड में भूल गए। 28 से 15 को लेना है तो निकालने कितने? तो बचे कितने? क्लियर? तो ये हो गया 44। 45। 44 वहाँ पे अभी वहाँ तो 31 और 40 लिखा। सॉरी, ये गलती हो गई ना, 15 से मिला, ये मेरी गलती हो गई यार। 13 आएगा, 44 आएगा, 44 ही आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, 2 2 23, यानी फरवरी में कितने दिन काउंट कर देंगे? 26 और ये 31, कितने हो जाएंगे? 26 प्लस 31 कितने? 57। राइट इट डाउन, 57 ओवर हियर। चलो 57। फिर 23 तारीख मार्च महीने की, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। मार्च में कितने दिन लिखे? 31 माइनस 23 कितने होते हैं? 31 माइनस 23 8। हाँ 8 दिन लिखो। चलो ये लिखो 8 दिन। नहीं बोले हो, विचार तो कब हुआ है? हाँ अब कौन सा दिन है? 28 है, तो 30 31 32, ये तो 3 ही दिन हो रहे हैं।
और ये कितने हो रहे हैं? 31 माइनस 15 कितना हुआ? 16। अब बोलो डेट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है? नहीं। अभी तक आप कैसे कैलकुलेट करते थे? हर बार जनवरी फरवरी मार्च लिखो, हर बार डेट लिखो। ये टेबल बना है जनवरी फरवरी वर्किंग में, समझ में आया? तो टीचर अगर ये देख लेगा ना तो सारे डेज कैलकुलेट करेगा। डेज ओके, आंसर आफ्टर टेलिंग। नाउ टेक कैलकुलेटर and do this multiplication. चलो 9 4 जा 36, फिर 1 2 3 4 3,60,000, ये 88,000। ओके, 57 into 5 1 2 7 से 35 3 15 25 3 28 है। कैलकुलेटर लेके देखना, चेक करना सही है कि नहीं। मैं विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ। Check it, all the things is correct or not. 57 into 500 28,500, 12 96 9,600, ये 3,000, सही ये है 16,000 है। देख लेना टेक्स्ट बुक में भी। कैलकुलेटर की भी जरूरत है? हाँ जरूरत नहीं है, सही है। नहीं, मुझे नहीं जरूरत, ऐसा नहीं है। हम लोग चेक करो। सर आपने बता दिया पत्थर की लकीर। हाँ, आपने बोल दिया पत्थर की लकीर। ऐसा नहीं होता यार, मेरे बोलने से सब सही नहीं होता। मैं भी गलती कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होती है, वो अलग बात है। चल अब इंपॉर्टेंट मैटर जिसके लिए सारा सब चल रहा है वो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। बराबर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, कैसे करेंगे? तो पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। देख लो कंक्लूजन कैसे करना है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे करना है। डू द टोटल ओवर हियर। इसका टोटल कितना आया? 4,48,000। चेक इट, सही है? वो था कितना? बस बराबर सही है। ये टोटल करो। बस हो गया। चल तो ऐसे 57,001। अब यहाँ पर एक वैल्यू, इसमें से ये जो फिगर है डेबिट साइड पर, उसमें से ये माइनस कर 4,48,000 माइनस 57,100 माइनस करना है सिर्फ आप। 3,90,900 आएगा। सही। वो यहाँ लिख दें कितना भी कम कैसे 3,90,900। ये जो है ना, दैट इज द डिफरेंस। बराबर, टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ लिखा होगा बाय डिफरेंस, लिखा है देखो, और डेट होगा 31 मार्च 23। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऐसा लिखा होगा। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अभी इधर 2-3 लाइन रखना। हाँ, मैंने रखी है जगह, लिखना है अभी कुछ ना कुछ। डन। अब आपको मैंने बोला था ना TRN अपॉन 100 तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 3,90,900 जो है ना, हमारे लिए प्रिंसिपल अमाउंट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। TRN अपॉन ये 3,90,900 इंटू 10
परसेंटेज यानी डिवाइड बाय 100 मैंने कर दिया इनटू 1 डिवाइडेड बाय 365। क्योंकि साल में दिन कितने होते हैं 365 और हमें एक ही दिन का कैलकुलेट करना है, बराबर। क्योंकि हमने प्रोडक्ट सारे दिन कैलकुलेट करके हमको 31 पे लेके ही आना है। सारे दिन हमने क्लोजिंग पर किए 31 पे ही किए, तो एक ही दिन का कैलकुलेट करना है। ओके, चलो कैलकुलेटर से ये वैल्यू फाइंड करो। 3,90,900 into 10% divided by 365 किया तो गाड़ी होती है। एग्जैक्ट वैल्यू 107 की नहीं है, 107 है, 106 पॉइंट समथिंग है, 106.84। देखो ये 5 से ऊपर जाए तो आपको क्या लेना है 10। सही है क्लियर। 107 सही आंसर है जब डेसिमल पॉइंट 5 से ऊपर है। अगर 5 से कम हो तो 106 लेते। अब इसको यहाँ लिखना है 107, यहाँ लिखना है अमाउंट के कॉलम में, और यहाँ लिखना है टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर 106 कैसे आया? डिवाइड कर रहे हैं, अरे हमारा खुद 107 ही आया। 107.095 106.3 3,90,900 into 10% divided by 365। 107 चलेगा, 19-20 का तो फर्क है। 107 लिखना है, गुड गुड। बराबर। 107 लिखना है इंटरेस्ट का पैसा, और उसमें ड्यू डेट लिखना है 31 मार्च 23। अब इसका टोटल करो, ये टोटल 6,107। यहाँ पर टोटल लिखो, बैलेंस फाइंड करो। 6,107, फाइंड आउट द बैलेंस ओवर हियर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड on 31st March 23। 6,107 में से ये 1 2 3 3,700 माइनस कर, यानी 2,407 रुपए आएंगे। अगर पहले आप फाइंड करते तो 2,300 रुपए, 107 रुपए में इंटरेस्ट उससे मांगेंगे। और ये बैलेंस जो है ना, उसको हमें ब्रॉड फॉरवर्ड भी करना है, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना 2,407, कौन सी डेट को 1 अप्रैल 23। ये बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड किया ना, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड भी करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ये तो प्रोडक्ट था, वैल्यू फाइंड करने के लिए 3,90,000 हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। सारा वर्किंग और डेट ऐसे ही करो, हमेशा याद रखो 3 महीने से ज्यादा नहीं है, और 3 लाइन में सारी डेट कैलकुलेट हो जाए, बराबर। और सीक्वेंस यही देना है, इतने साइड्स जितने भी है, सपोज ये 2 है, 2 की जगह 3 हो सकते हैं, तो 1 2 3 ये है, 4 5 6 7 ये है। और ये डेट कैलकुलेट करने का सीधा तरीका एकदम इजी, आपको हर बार डेट गिनने नहीं पड़ेगी, और जो नहीं है उसमें डैश कर दो,
केस कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। Done? तो लाइव लेक्चर के लिए जो बच्चे थे लाइन ऑनलाइन पे, उनके लिए लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। क्लोज इट।